नमस्ते और स्वागत है आपका कैंपस कोड पॉडकास्ट में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो अपने आइडियाज़ और मेहनत के थ्रू नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट मयंक अरोड़ा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो चाय पीने का तरीका बदल रहा है, कप जी। कप जी एक रेडी टू ब्रू टी कप है। इसके बॉटम में बिल्कुल सही क्वांटिटी में प्रीमियम ग्रीन टी ऑलरेडी प्लेस्ड है, जितनी एक 150 ml कप के लिए चाहिए होती है। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि अक्सर लोग ग्रीन टी बनाते वक़्त ये सोचते हैं कि कितनी डालनी है जो परफेक्ट टेस्ट दे। और सबसे मज़ेदार बात, कपजी ट्रेडिशनल ग्रीन टी को नए फ्लेवर्स के साथ लेकर आया है। इंडिया के लिए 8 फ्लेवर्स और इंटरनेशनल मार्केट के लिए 23 फ्लेवर्स, सब नेचुरल और शुगर फ्री। इस आइडिया के पीछे जो मेहनत है वो लेकर आए हैं आकाश सोटा जी, को-फाउंडर ऑफ कपजी। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, बात करेंगे और ये समझेंगे कि उन्होंने ये यूनिक प्रोडक्ट बनाया और क्या चैलेंजेस आए। तो अपने लिए एक गर्म चाय का कप बना लीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग कन्वर्सेशन के साथ। Cool, then thanks for coming for festival, and it was very inspiring to see you on Shark Tank. Great branding, great brand, a very unique product. So why not? I would like to know a behind journey, like कब से पहले क्या जर्नी थी आपकी? You So did PUBG शुरू engineering. होने से पहले by education I'm an engineer, a mechanical engineer. I worked with the EV sector for a while, and then moved on to study more management studies, more topics about how do you really commercialize technical innovations, and that's what took me to the US. I studied there at Duke University, the engineering management course. Worked as a software product manager for some time, and then I think decided to come back. Why masters? Like product management में क्या क्या सीखा आपने? Can you share? Sure. So, like an engineer, you learn to build, but what should be built is a more important question than just building it. And how, once that product is built, how do you take it to market is the second part of the question. Because building alone doesn't suffice. Creation alone, for that matter, doesn't suffice the market requirements if you're not able to take it to the market in the right direction. So while the first part of the puzzle was taken care of at engineering, the second and the third puzzle is what I wanted to join, and that's exactly why I went to the master's course, where I learned basics of management, or basics of how do you manage a business, subjects like accounting, marketing, strategy, uh, leadership. So yeah, these qualities that you typically lack in an engineering course is what makes you a complete personality when you put these two things together. When you were doing engineering, when you did engineering, you had a clear goal set that you want to pursue entrepreneurship or you want Uh, to take a corporate job. So yeah, while doing my engineering, I was sure that I want to be building something, right? That's exactly why you join engineering. You like the logic, the creativity aspect of it, and how challenging it is, how it puts on your thinking gaps. Also allows you to do a lot of structured thinking. But then on, in fact, in my engineering college days itself, I had joined the entrepreneurship cell of the college. So there was always an inkling to be making something of my own, or for that matter, looking at a wider picture or a horizon. So Hawkeye view is what I like to refer this word as, is what I've always liked. And that is also what took me towards engineering management and further building a business. Awesome, awesome. So, in fact, if you've heard about a term called a T-shaped thinking, it's called the T-shaped thinking, where a single vertical is what you master into, or you like getting deeper into something. But at the same time, the T is what cuts you across different fields or horizons. So, for example, as a entrepreneur, you probably are good at sales, but also as or like an individual, you're good at sales, but as an entrepreneur, you want to be looking at the marketing wing, the sales wing, the operations, the finance, the production. So all of this, when you put together, is what makes you an individual. Yeah. Can you explain more about T-shaped thinking? I don't know about much about that. What is that? So typically in a T-shaped thinking process, you try to own one aspect of the business, or you try to get deeper into that aspect of the business. So, for example, sales is what I look at in Kabji or this organization.
Now, anything related to institutional sales, pharma gifting, or other avenues where larger sales initiatives are involved is what I put myself directly into. Now, this could also be making distributors, interacting with them on a daily basis, or further than that. But as an entrepreneur, you can't limit yourself to doing that. In fact, you also have to look at operations or production. Like sales तो आपने घर पे ला दी, but वो बनाएगा कौन? वो क्या मैनर में बनेगी, क्या ऑर्डर में बनेगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें लगेगी। उसके लिए आपको ऑपरेशंस देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप हर वेंडर के साथ डे टू डे बेसिस पे बात करोगे, फ्लो समझोगे, नेगोशिएट करोगे एंड इंश्योर करोगे कि वो प्रोडक्ट सही समय पे आपके पास पहुँचे। साथ ही साथ जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया, एक होता है द बी टू बी विंग, बट देयर इज ऑल्सो बी टू सी विंग, जहाँ पे आपको आउटवर्ड जाना है, जहाँ पे आपको कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुँचाना है। सो गेटिंग द राइट मार्केटिंग अप्रोच एंड द चैनल मिक्स इज़ वेरी क्रिटिकल। जिसमें आपने डिसाइड किया आपकी फोटोग्राफी है, क्या पोजीशनिंग होगा, क्या प्रोडक्ट कंपोजिशन होगा, इस सब में। सो दैट लुक्स आफ्टर द मार्केटिंग थिंग। एंड लास्ट आई थिंक इज ऑब्वियसली एज एन एंटरप्रेन्योर और एनी बिजनेसमैन इन जनरल, व्हिच इंडिया इज वेरी रिच इन, इज द फंड मैनेजमेंट। तो वहाँ पे एक आ जाता है कि यार अगर मुझे फंड इतना है तो मुझे कैसे किसको एलोकेट करना है। तो while that all of it does not directly fall under my portfolio, where my co-founder looks at a majority of other portfolios like accounting aspect of it, or the creativity aspect of it, a lot of operations also. So he manages the other parts of the tea, and I manage the one part of the tea. So ऐसे है, while I need to be involved everywhere, but एक particular को आपको होन करते हुए चलना है। समझ गया। देन नाउ कमिंग टू कप जी, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, लाइक आइडिया कब आया, कहाँ से आया, क्या प्रॉब्लम दिखी एंड फिर सॉल्यूशन कैसे आया? सो आइडिया तो यार ये यहाँ से आई थी कि 2 बेवरेजेस, हॉट हॉट बेवरेजेस अगर आप देखें तो 2 ही बेवरेज हैं इस इंडस्ट्री में। एक है चाय और एक है कॉफ़ी। और आप जनरली किसी के दुकान पे जाएँगे, किसी को मिलने जाएँगे, तो किसी घर जाएँगे, तो हर जगह वहाँ यही बोला जाता है कि यार सर आप क्या लेंगे? चाय या कॉफ़ी? ठीक है? और थर्ड बेवरेज एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो मार्केट साइज़ एंड द अपॉर्च्युनिटी इज़ ह्यूज, बट वहाँ पे कोई थर्ड बेवरेज का क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ। When you look at chai in general, chai though sounds to be a very Indian beverage, but it has its ancient roots coming from different parts of the world, and different habits have or reasons have influenced chai consumption in India. But so to say, chai right now is a decoction of tea, milk, spices, and sugar. And all of that, when now put together in the current lifestyle that we are living, tends to either cause the acidity or the sugar flux. क्योंकि हम यार जनरली लोग 4 से 5 कप चाय के तो ऐसे ही अमूमन पी जाते हैं, without having to realize the amount of sugar that is or calories that are getting into your body. And then they would probably blame the other foods that they're having, not realizing that chai alone is contributing to 90 minutes of work that they need to do just to burn the calories that they're consuming. On the contrary, there's coffee, which is a growing beverage. But interestingly enough, coffee and the whole aspect, जैसे मैं यूएस में था, तो यूएस में the weather and the climatic conditions are much more colder, much more drier and favorable for you to have consumed like a beverage like coffee. But translating that to an Indian context, which is more tropical in nature, जहाँ पे हमको sweating ज़्यादा होती है, जहाँ पे dehydration ज़्यादा होता है, we are more under the sun for a majority of 8 to 10 months of the year. I am not sure if coffee is that first and the only beverage that you should look at, because it does have its dehydration aspects of it. It does have the aspects of acidity and couple of other things. So that's when we decided India does need a third beverage, which is low on sugar and calories and which cuts down on the other aspects of these side effects. Yeah. So that's when green tea as a beverage was born and kabji as a beverage का fundamental pillar शुरू हुआ. नहीं, ग्रीन टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट Sure. यू मतलब So और that's बहुत टाइम से करती है आई थिंक। yeah. I think you're heading into the right direction with the next question. I think green tea has existed in the market for a really long time. What made us different, and why did Kabji stand out in the market, or what is the market gap that we saw is the real question. Now, when you try to get deeper into a particular field, you try to analyze that what are the gaps or the flaws in that particular market. If green tea came into India 10 years back, why hasn't it become a relevant beverage by now? Why haven't people said कि आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ग्रीन टी? अभी तक वो क्यों नहीं हुआ?
सो वी स्टार्ट इंटरव्यूइंग पीपल, यार आप ग्रीन टी पीते हैं? कुछ बोलते हैं हाँ हम पीते हैं, कुछ बोलते हैं हाँ कभी-कभी पिए, कुछ बोलते हैं हम नहीं पीते। दीज़ आर द हुँ, 3 थिंग्स। हुँ, फर्स्टली जो पीते हैं, उनको हमने पूछा यार आप क्यों पीते हो? यार हुँ, किसी ने बोला हम पतले हो जाएँगे, किसी हुँ, को चलो बाहर के एक्सपोज़र के होने की वज़ह से टेस्ट जम गई, हुँ, किसी ने बोला यार हाँ ठीक है, पीते तो हैं, क्यों पीते हो अभी उस चीज़ को यार कितने ऑफ़न पीते हो? तो यार हुँ, एक डायटीशियन का सुन के वो लिप्टन का टी बैग का डब्बा तो घर लेके आए, 2-4 बार ट्राई भी किया, बट आदत नहीं लगी क्योंकि बहुत कड़वा है, ब्लैंड है, बिटर है। इंडियन टेस्ट प्रोफाइल में सूट नहीं हुआ। हुँ, एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज़, यार घर पे ला तो दी 10 साल से बना रहे, बट अभी भी बनाने का टेक्नीक सही नहीं आता क्योंकि चाय को बचपन से उबाल के पिया है, तो ग्रीन टी को भी उबाल के पिएँगे। व्हेयरएज़ हुँ, एक्चुअली टी इन जनरल इज़ सपोज्ड टू बी ब्रूड एंड नॉट बॉइल्ड। तो वो हुँ, कड़वा तो होना ही है। इट्स लाइक आप नीम के पत्ते को बॉयल करके उसका पानी पी रहे हो, तो कड़वा तो हुँ, होगा ही। सो इट्स हुँ, लाइक दैट। सो वी आइडेंटिफाइड टेस्ट एंड एडुकेशन और एक्सेसिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। हुँ, टेस्ट को हम पेपर बोर्ड की स्ट्रैटेजी लगाए, जहाँ पे हम काफ़ी इंडियनाइज़्ड टेस्ट प्रोफाइल्स पे हमने फ़ोकस किया। हुँ, नॉस्टैल्जिक टेस्ट प्रोफाइल्स पे हमने फ़ोकस किया। इसमें हुँ, हमने कोकम जो कोंकण का स्पेशल है, पान हुँ, जो बनारस कलकत्ता का है, दिल्ली का चटकारा है, जलजीरा का फ्लेवर लेके आए। ऐसे सब फ्लेवर पैटर्न्स लेके। हुँ, अगेन दीज़ आर ऑल इंडियन बेवरेजेस व्हिच आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट कहीं हुँ, न कहीं रास्ते में छूट चुके हैं, ठंडा हो गया ये। हुँ, एंड सेकंड इज़ वी पुट ऑल ऑफ दैट इन अ पेपर कप, नीचे मैश डा ग ग्रीन टी डाल दिया और मैश डाल दिया, ताकि आज इंसान को ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मुझे बॉयल तो कर नहीं सकता क्योंकि चाय तो ऑलरेडी अंदर है, तो ऊपर से ही हुँ, पानी डालना है और वो हुँ, कंसंट्रेशन परफेक्ट है, मतलब 150 एमएल के लिए जितना मिक्स चाहिए हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो वो आप रेडी टू सिप फॉर्मेट में पी सकते हैं। So now this opens up our door into the third avenue, which is out of home consumption. हुँ। अब एक तो चीज़ है यार, जैसे आपने बताया कि आपने आपने चाय डाल दी नीचे, आपने मिक्स डाल दिया जितना चाहिए 150 एमएल के हिसाब से एंड यू यू सेड चाय को हमको बॉयल नहीं करना होता, ब्रू करना होता है। उसको उस एस्पेक्ट में बताएँ क्योंकि वी हैव मतलब हमने टी जितने भी कंज़्यूम करते हैं घर में हम बॉयल ही करते हैं। कैन यू टॉक अबाउट ब्रू कैसे करते हैं कि उसमें सिर्फ बॉइल्ड वाटर डालते हैं एंड योर टी इज़ रेडी? See, ideally speaking, जब टी ब्रू होती है मतलब you put a certain grammage of tea in about हुँ, 150 ml of water and ब्लैक टी को आप 6 मिनट तक रखते हो और ग्रीन टी को आप 2 मिनट तक रखते हो। हुँ, Shut. Like you take a grammage, you pour boiling water, close it with a lid, and you let it stay. After that, you remove the lid after 6 minutes for black tea and green tea के लिए 2 to 2.5 minutes it depends. And then हुँ, you remove that. मतलब आप उसका जो concoction है उसको strain कर देते हो उसके granules को और अलग से एक saucer में डाल के या कप में डाल के आप पीते हैं. That is called brewing. हम इंडिया हुँ, में क्या करते हैं, बड़ा सा पतीला लिया, चाय डाला, पानी डाली, अदरक डाला, चढ़ा दिया। इतनी कड़क करनी है, अरे कड़क कीजिए तो 2, 3, 4 बार उसको उबालते रहते हैं, फिर दूध डालते हैं, वो जैसे ही थोड़ा अच्छा सा कलर वगैरह दिख गया, उसको साइड हुँ, में छान के निकाल के पी लेते हैं। सो दैट हुँ, इज़ व्हाट मेक्स फॉर ब्लैक टी व्हाइल इट इज़ ओके क्योंकि वो ब्रिस्कनेस चाहिए। ग्रीन हुँ, व्हिच इज़ अ सॉफ्टर ब्रू वो कड़वा हो जाता है। सो हुँ, ग्रीन टी को ब्रू किया जाता है। अब इस कप में जब भी आपने मैश के नीचे ऊपर से ही पानी डाला है, इसको ब्रू हुँ, करने का ही सिर्फ़ स्पेस है। मतलब ये अपना हुँ, फ्लेवर छोड़ता रहेगा और आप हुँ, कन्वीनिएंटली इसको सिप करते रहेंगे। इसको आप हुँ, फाड़ के बॉयल करने वाला तो सिस्टम है ही नहीं इसमें। सो हुँ, दैट मेक्स द जॉब ईज़ियर। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को हुँ, अभी एक कैंटीन में सोचिए या एक हुँ, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जहाँ हुँ, पे आज आपको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है चाय वाले को या कैंटीन वाले को भाई इसको कैसे बनाना है, भाई तुम सिर्फ़ हुँ, गरम पानी डालो और ये कप रेडी टू सर्व हो जाएगा। हुँ। सो इट मेक्स इट ईज़ियर इन द इंडियन मार्केट और कॉन्टेक्स्ट। बट डू यू थिंक जैसे आपने बोला कि सिर्फ बॉइल्ड वाटर डाला एंड आपकी चाय रेडी है। तो डू यू थिंक यहाँ पे जो इंडियन मेंटालिटी है वो दूध पे बनी है कि दूध 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 के बिना चाय आई थिंक नहीं होगी। तो कितना एक मास प्रोडक्ट मास एडॉप्शन हो पाएगा इस चीज़ का See, while विदाउट if you have to look at any FMCG product, हुँ, अनलाइक टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट का जो पेस होता है, इट्स हुँ, नॉट एज़ फास्ट एज़ व्हाट टेक्नोलॉजी इज़। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ जियो ने सबके हाथ में आ गए, इट्स नॉट हुँ, एज़ ईज़ी एज़ डाउनलोडिंग हॉटस्टार एंड जस्ट हुँ, क्लिकिंग अ वीडियो एंड लुकिंग एट इट, और यूट्यूब जैसा नहीं होता, डेफिनिटली।
इसमें डेफिनेटली एक एलिमेंट होता है ऑफ स्लो एंड स्टडी पेनिट्रेशन एंड द कंजम्पशन मार्केट। अगर आप कोई भी एफएमसीजी ब्रांड को देखेंगे तो अमूमन उसको 7 से 10 साल एंड ऑनवर्ड्स ऑफ 15 ईयर्स भी लग जाते हैं टू सक्सेसफुली पेनिट्रेट इनटू द मार्केट. So yeah, while I see it's not like an overnight success product, it will take time for it to penetrate. But yeah, with our retention right now, so we see over 30% retention of our consumers. मतलब consumer को अच्छा तो लग रहा है तभी वो reorder करते जा रहे हैं. So that is the हम्म। positive light in this case. कि this is a metric that I would surely look at if I'm building an any FMCG product. कि how good is your retention? If it is हम्म। good, means consumers are liking it, means there is a repeated consumption pattern that is developing in your consumer. या एक क्वेश्चन कि यू आप एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो मोर देन मास सेलिंग इन इंडिया। मीन D2C करने के बजाय आप एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो, जो हमने शार्क टैंक में देखा शायद, इफ आई एम राइट। ऐसा क्यों? Uh, I would say it's a balanced focus. क्या होता है कि export market now it depends on what innate strength as a company you have and what is the insight that you have unlocked. Now some people bring in a lot of experience when they're joining or creating a startup. कोई होता है यार 10-15 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल अमन गुप्ता जी के केस में जब उन्होंने बोर्ड शुरू की थी, ही हैड गो 10-15 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बैकिंग हिम. So it was very natural for him to progress in that industry. उनके distributors, dealers, जो बड़े chains हैं, channels हैं, वो सब बने हुए थे. Sourcing channels establish हो चुकी थी उनके लिए. For us, that comes in with our family business, which has been into the tea export industry. So वहाँ पे where we have an easier access to the international market than domestic market. So it is a very likelihood कि जहाँ आपको easier access मिलता है आप definitely वहाँ try तो करोगे. To top it up, the Gulf is a higher tea consuming per capita consuming region than what India is also. जहाँ पे 4 से 5 कप दिन के तो चाय अमूमन कोई भी ब्लैक टी या ग्रीन टी पी जाता है, वहाँ पे मिल्क का कॉन्सेप्ट तो अभी अभी आ रहा है. सो कब्जी इज अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट फॉर देम. मतलब उनको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, उनके लिए तो एवरीडे लाइफ में कन्वीनियंस का लेयर ऐड हो गया, ये ऐसा हो गया. सो वहाँ पे फॉर दूध अस दूध नहीं डालते लोग चाय में। नहीं, 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 वहाँ पे तो इनफैक्ट अभी-अभी दूध वाली चाय का ट्रेंड आ रहा है धीरे-धीरे. अदरवाइज़ वहाँ पे तो ब्लैक टी ही कंज़्यूम करते हैं लोग या ग्रीन टी कंज़्यूम करते हैं. ओके। और इतना आप ज़्यादा कि मान लो एक ही मीटिंग में लोग 10-10, 12-12 कप चाय आपके सामने बैठे-बैठे पी जाएँगे. दे विल नॉट कॉल फॉर वाटर, दे विल कीप कॉलिंग फॉर टी एंड पीपल विल कीप, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में पानी कैसे रिफ़िल करते हैं वेटर्स, वहाँ पे ऐसे चाय रिफ़िल किया जाता है कॉन्स्टेंटली. सही है। आपने कौन-कौन सी कंट्रीज़ एक्सप्लोर किए हैं एंड ये चाय, एक तो गल्फ रीजन आप बोल रहे हो, एंड और कौन-कौन सी कंट्रीज़ में आपने चाय एंड कॉफ़ी का एक्सपोज़र देखा? कैन यू शेयर एनी स्टोरीज़? I think for us, Gulf Food was like the biggest platform. Gulf Food में we were first time हमने वो product डाला था showcase में, and we were nominated as the most innovative beverage for our blends and for the structure that we were proposing in the market. So that definitely gave us a lot of visibility. Now Gulf Food is again a platform which brings in people from different parts of the world. Like that was the same place we met a very large Japanese supermarket के purchase head को मिले थे, हम Gulf वाले को मिले थे. इनफैक्ट यूएस एंड यूरोप के भी मैनेजर्स को काफ़ी मिले थे. बट नेचुरली what is more easier to crack was the Gulf because of our strength. So far we've been exporting to over 7 to 8 countries, including Japan, Saudi Arabia, Australia, UAE, Kuwait, Iraq. So all these places, yeah. And I think it's a very high touch industry where the more people you meet, the more you put yourself out there is how you will be able to get your customers, and that's it. So it's not a very technologically heavy driven या intense market. What for example आज कोई भी product आपने Amazon.com पे डाल दिया, you put in, you do the right A plus content, ship your product to the FBA bidder is taken care. No, this requires some time, some contacts, so which also gives us that extra edge over other companies. एंड हमने हमने देखा कि आपके जो लेगेसी भी है, वहाँ से क्या-क्या सीखा आपने कि 5 साल जो फैमिली बिज़नेस ही एक्सपोर्ट करी है टी को? एनी सो लर्निंग्स फ्रॉम दैट? वहाँ से आई थिंक 2 चीज़ें हमने सीखी, वो सोर्सिंग द राइट क्वालिटी ऑफ टी. सो आजकल कल को ये कॉन्सेप्ट भी कोई कॉपी करके को लाने की अगर कोशिश कर लेता है, तो फॉर हिम टू गेट द राइट सोर्सिंग विल बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट. दिस इज़ व्हाट आई थिंक 25 years of experience does to you, gives you good sourcing, good network, and at the same time the international market access.
since we are a predominantly export, matlab, the parent company is a predominantly export company first. It is a natural tendency to have stronger footholds, knowing how the international trade works. So otherwise, यहाँ बैठे बैठे किसी को export करना is very difficult. It's not so हुँ, easy. That is the extra edge that we get by doing that. The international trade fairs, the structure of payments, the structure and thought process of buyers, ये सब हमको वहीं से समझ में आता है. हमको शायद नमिता जी ने भी बोला कि जो ग्रीन टी के मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, दे विल डू समथिंग कि वो दूसरे फ्लेवर्स ले आएँगे एंड उसी को सेल करना शुरू कर देंगे एंड दैट वुड कुड बी योर कॉम्पिटिटर। See, एनीथिंग definitely, when you talk about the FMCG industry, copying in an FMCG industry is no big deal. मतलब आज केरला बनाना चिप्स कोई देख लो, कोई भी कॉपी करके अपना चिप ब्रांड निकाल सकता है. But how difficult is that? It's part of two to three things. I think it's operations that you have to do right, the flavor development of taste, and third is I think marketing or reaching or that identifying that one insight that really changes the levers for you. So far, I think we have done all the three right. We have introduced an entirely new pattern of consumption. We work very hard on our flavors and we keep re-innovating them all the time. For example, Domino's ke CEO had come in a very interesting podcast with at the barber shop, and he said that every time we try to introduce in every festive season a new variant or a new flavor, but उस वजह से वो तब तो peak मिलती है, but our other flavors also remain a very high selling point. वो कभी भी फेड ऑफ नहीं हो सकता. मतलब एक आलू टिक्की बर्गर हमेशा हाईएस्ट ही होगा, भले कितने भी मैकपफ आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, in context. So similarly in our case, जब एक कंज्यूमर को एक टेस्ट प्रोफाइल जम जाती है, फॉर एग्जांपल इट्स कोकम फ्लेवर फॉर अस. महाराष्ट्र इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी ट्रॉपिकल और अ मिड वेदर क्लाइमेट, मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, मिड वेदर होता है यहाँ पे, फिर भी वो हमारा हाईएस्ट ग्रॉसिंग, हाईएस्ट रेवेन्यू स्टेट है, बिकॉज द कोकम फ्लेवर दैट वी हैव होन्ड और शार्पेंड, लाइक पीपल लव अस फॉर द टेस्ट प्रोफाइल दैट वी हैव. सो आई थिंक इट्स दैट. एंड ये सबको अगर आप साइड में भी रखें, देन एज अ ब्रांड और एज अ कंपनी इन इटसेल्फ यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग. सो आई विल शेयर यू अ स्मॉल सीक्रेट और लाइक अ ग्लिम्स कि नया प्रोडक्ट लाइनअप भी हमारा आ रहा है, वेयर आई थिंक वी आर डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग मोडालिटी बेस्ड ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जहाँ हम एक्चुअली हम टी, कॉफी, हॉट चॉकलेट एंड अदर रेंजेस में हम जाने वाले हैं. सो या कूल। तो नेक्स्ट कुछ रिवील कर सकते हो लाइक व्हाट आर द अपकमिंग फ्लेवर्स? क्या इनोवेशन आ रहा है? लाइक So I think more than what we are doing there is important to what insight that we have captured. For us, I think that insight has always been that out of home consumption is a very big market. To simplistically say that an average Indian consumer consumes typically about 3 to 5 cups of hot beverages. और वो एक ही बेवरेज होता है जब वो घर पे पी के निकलता है, उसकी चाय या कॉफी. वो घर पे नाश्ते के साथ चाय और कॉफ़ी लेके निकलता जो है, वो सीधा ऑफ़िस जाता है, जहाँ पे वो 11-12 बजे वाली अपनी चाय कॉफ़ी लेता है, 3-4 बजे वाली लेता है और 7-8 बजे वाली लेता है. एंड फिर कभी मन हुआ तो घर पे जाके इसने लिया. बट ये 3 टिपिकली जो है, वेयर 75% ऑफ द कंजम्पशन इज़ हैपनिंग आउट ऑफ होम, where convenience is the most prima important. So that is where we are going to focus on, is making that cup, the whole कपजी का जो कप वाला एसेंस है, या फिर जो कन्वीनियंस वाला एक एसेंस है, रेगुलेटेड ब्लेंड या फ्लेवर्ड वाला जो एसेंस, उसको हम आगे डेवलप करते जाने वाले हैं. So while we started with green tea, which is going to be healthy, there are other sugar-free variants of other hot beverages that are coming up in the pipeline, which will be facilitated in cafes, in uh, larger facility management companies, airlines, a lot of other places. एक चीज़ यार कि हमने देखा ना कि आपका जो एक कप है वो 22 रुपए का है आई थिंक। तो हैव यू प्लान्ड कि वो उसको मास इन कॉर्पोरेट, जैसे मेरे जैसे या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, वो 3 बार आपने बोला कि चाय पीते हैं, तो आप उसको प्लान कर रहे हो कि कॉस्ट को और लो लाया जाए ताकि मास एडॉप्शन हो? See, mass adoption doesn't come with price यार. That's a very wrong myth कि यार सस्ता कर दो तो बिक जाता है. अगर सस्ता करने पे बिकता तो आज मर्सिडीज भी नहीं बिकती इतनी जितनी होंडा बिकती है, या फिर ज़्यादा करके अगर आप बोले मारुति. एवरीबडी हैज़ देयर ओन मार्केट सेगमेंट एंड ओन कंज्यूमर होता है. आज आपको डेली वेजेस वालों को मुझे चाय नहीं पिलानी. इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू सी देम, बट आई डोंट सी देम एज अ टारगेट ऑडियंस. आई सी इट इवेंचुअली बिल्डिंग, लाइक आई टेक यू टू अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोसेस. आज जब टच फ़ोन पहली बार इंडिया में आया था,
तो टच फ़ोन एचटीसी का आता था जब आप ऐसे टक, 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 टक यूज़ करते थे। वो तकरीबन मैं 11th-12th में था तभी आई थिंक आया था, दैट वाज़ अबाउट 10-12 इयर्स बैक। आज आप अगर देखेंगे तो एवरीबॉडी राइट फ्रॉम योर डेली वेज वर्कर्स टू योर सीईओज़ एवरीबॉडी यूज़ेस अ टच फ़ोन। That is the penetration of the product, and it doesn't happen the first day. It happens eventually over a period of time. आज एक ज़माने में हम सोचते भी नहीं थे यार कि 12,000 15,000 का फ़ोन लें, राइट? दैट वाज़ द माय फर्स्ट फ़ोन वाज़ 8 to 9,000 and it was very expensive for me even then. तभी लोग कॉर्बी लेते थे 5,000 का, that was also very expensive. Today's day and age, we are spending about a lakh rupee on an iPhone, and that is still not considered to be expensive. राइट? दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दैट कंजम्पशन पैटर्न, परचेज़ पैटर्न इंडिया का बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज आप अगर रास्ते पे भी जाते हैं तो रास्ते की चाय ₹10 की आती है जिसमें 70-75 ml ऑफ चाय होती है जो 2 सिप में खत्म हो जाती है। So we are not wrong when it comes to the right price point. We are attacking a corporate employee जिसकी अमूमन सैलरी एक 60-70 हज़ार 1 लाख रुपया होती है और उसको दिक्कत नहीं आती आज ये स्पेंड करने में। And eventually as the buying pattern improves, as consumption pattern improves, people will start spending on it and people spend for convenience. That's one. आई थिंक द सेकंड थिंग इज़ इफ यू लुक एट आवर यूट्यूब कमेंट्स, मतलब हमारा एपिसोड एयर हुआ, उसके बाद यूट्यूब पे डाला गया। यूट्यूब पे आप जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो इनफैक्ट मोस्ट पीपल हैव सेड इट इन आवर फेवर कि यार कब से ₹22 की चाय महँगी होने लगी। क्योंकि अमूमन ₹25-30 का तो ऐसे ही कोई भी हॉट बेवरेज बाहर मार्केट में मिलता है। एंड व्हेन यू लुक एट कैफेज़, दे आर ऑन अ रेगुलर कैफेज़ आर मार्क्ड एट 150-160 एंड अदरवाइज़ अ कैपुचिनो इज़ एट 230-250। तो कहाँ 250-230, कहाँ हम ₹22 में एक हेल्दी बेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। So in fact, people have been more in our favor and have been, in fact हमको एक भी बार कंप्लेन किसी कस्टमर से आई नहीं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। So I don't think that feedback was relevant to us. आई थिंक हेल्दी है एंड टेस्टी है, दैट वुड भी एडॉप्शन करेगा। Absolutely, healthy, tasty, and convenient. These three things are a game changer or a winner for us. कुछ हम आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी थी जैसे हमने देखा और आपको एप्रिसिएशन भी काफ़ी मिली। एनी टिप्स ऑन ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग कहाँ से सीखी एंड एक प्रोडक्ट अगर कोई मेरे जैसा लॉन्च कर रहा है तो उसको कैसे ब्रांडिंग अच्छे से कर सकते हैं? I think I will share Kabji's insight on how we can translate that in a more generalistic context. हुँ, So Kabji में हमने again क्या insight capture किया है? Again come back to the insight word because that is what makes you an entrepreneur or a business model. हुँ, हमने ये कैप्चर किया कि ग्रीन टी इज जनरली, अगर आप चाय बोलेंगे, चाय पे चर्चा होती है। क्या हुँ, आपने कभी सुना ग्रीन टी पे चर्चा होती है? कभी कभी बात ही नहीं हुई। ग्रीन टी तो हुँ, हमेशा वही है कि आप सॉलिट्यूड में एक बुक के साथ गरम मग लेके बाहर देखते हुए पी रहे हैं, इन योर ओन ओन स्पेस is what it's called. So always there was this individual approach towards green tea and that hot beverage category. While हुँ, we saw it very differently, हमें लगता था कि यार ग्रीन टी को एक साइड रखते हैं, बट अदरवाइज जो टेस्ट प्रोफाइल्स जो हमने डेवलप की हैं, जो इंडियनाइज टेस्ट प्रोफाइल्स हैं, या चाय का जो कंज्यूमिंग एंगल है, वो हमेशा 3-4-5 लोगों के साथ मिलके पिया जाता है। So हुँ, that's the reason we had cups on faces. That's the reason we added the G bit of it. कप जी, जहाँ पे हमने बोला कि यार हर कप पे एक कैरेक्टर ओवर कैरेक्टर इज व्हाट विल ऐड टू वन द फ्लेवर एस्पेक्ट ऑफ इट और द ब्रिस्क ब्यूटीफुलनेस ऑफ द फ्लेवर। जैसे कौस्तुभ केलकर है, केलकर इज अ वेरी महाराष्ट्रियन सरनेम दैट कम्स फ्रॉम द होल ओरिजिनेशन ऑफ कोकम एंड बीइंग कोंकण इन नेचर, बट एट द सेम टाइम द कैरेक्टर इज व्हाट ब्रिंग्स द चर्चा एलिमेंट इनटू इट। जहाँ पे आप चार लोग मिल के, आज कैरेक्टर्स मिल के वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। So that's the whole aspect. So that's the reason you see every cup has a face and has a character behind it. या So and कुल when you have to put it in a more general context कि यार आप एज आपके व्यूअर्स क्या सीखे इसमें से, या फिर आज यूथ क्या सीख सकता है जो अपना नया ब्रांड या प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है। सी, हुँ, ब्रांडिंग पे आप दो तरीके की ब्रांडिंग हो सकती है। एक होती है जनरल ब्रांडिंग जिसमें आप जो बाकी प्रोडक्ट्स है उसी में घुल मिल जाओ। अगर हमको ऐसा कुछ ब्रांड बनाना होता तो हम ग्रीन येलो रेड ऐसे सब कलर्स में चले जाते जो जनरली टी के कलर्स माने जाते हैं। जैसे आप हुँ, टेटले ट्वाइनिंग देखेंगे एकदम, या हुँ, लिप्टन देखिए सब ग्रीन के पैटर्न में आ जाते हैं। सो हुँ, व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज अ चीपर प्रोडक्ट दैन द करंट प्रोडक्ट लाइनअप, मतलब मान लो जो करंट प्रोडक्ट है ₹100 में बिक रहा है, आपने कुछ एक मॉडिफिकेशन टू प्रोसेस किया है जिसकी वजह से आप ₹100 का प्रोडक्ट को ₹50 में बेच सकते हैं, तो आपको हुँ, वो काइंड ऑफ ब्रांडिंग में जानी चाहिए। अगर आप हुँ, कोई हुँ, स्टैंड आउट प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कब्जी फॉर एग्जांपल इज अ स्टैंड आउट प्रोडक्ट, सो आई वुड हुँ, ट्राई एंड कम्युनिकेट कि यार ये प्रोडक्ट आप ऐसी ब्रांडिंग क्रिएट कीजिए इसके आसपास जो इसके
करंट पोजीशनिंग से बहुत हटके हो, ताकि आपको उसके लिए विजिबिलिटी मिले। हुँ, Right, that's the first thing. Second thing is you have to decide what are you first. Are you a D2C or a quick commerce first platform brand, or are you a retail first brand? If you're a, and that depends on what really. अगर आप retail first है, go ahead with some mid quality, mid strength material like duplex boxes. But if you're हुँ, a D2C brand, आपको पता ही है वो कैसे handle होने वाला है. So make something sturdy such that when the product reaches the end consumer, the experience is not compromised. हुँ। अब तक की जर्नी में कुछ चैलेंजेस फेस हुए जो आप शेयर करना चाहें एंड उनको कैसे ओवरकम किया? I think for us, challenges definitely came in from the whole idea of the यार ये कप है, ये कप को कुछ अलग है, समझ नहीं आ रहा अगर आप इसको see when I look at this stack of cups, right? It हुँ, just looks like I've stacked one paper cup on top of the other. हुँ, Right now, हुँ, what really makes it, and when I put it in a jar and I keep it on a shelf, तो लोगों को लगेगा मैं कप्स बेच रहा हूँ। हुँ, और लोगों को ये नहीं पता होगा कि यार कप के अंदर भी कुछ है जो कंज्यूम किया जा सकता है, बिकॉज़ एजुकेशन ही नहीं हुआ है इसके बारे में, हुँ, अवेयरनेस नहीं। सो या अवेयरनेस आई थिंक इज़ वन ऑफ आवर मेजर चैलेंजेस फॉर अस, कि यार लोगों को कैसे बताएँ कि ऐसा भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। हुँ, Right, because typically a shopper spends very few seconds on typically uh, in a retail store. So Shark Tank was, I think, one of the major game changers for us, which was able to put ourselves out in not just हुँ, the Instagram world but also tier 1 and tier 2 audiences, जहाँ से we got tremendous amount of love and affection for our flavors. So awareness definitely was that puzzle, and I think Shark Tank did a fantastic job at solving that for us. कूल। शार्क टैंक पे की बात हुई तो शार्क टैंक पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एनी इनसाइट बिहाइंड द सीन आप शेयर करना चाहें कुछ? या आई थिंक शार्क टैंक व्हाइल मोस्ट लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, हमको बुलाया गया था शार्क टैंक, सो वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द शार्क टैंक टीम कि गाइस वी वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट because the product was unique. They might have come across us somewhere somehow, and they हुँ, felt that yeah, these are the products that we want to showcase on TV, we want people to know. And I think that was our first victory. As we progressed through multiple rounds of interviews and Q&As, they liked what we were coming up with. They liked our story, they liked the product, the uniqueness. So I think that took us till the fourth round of the, which was more like the mega or more the final round. uh, I think that is where, as a startup, so definitely हम काफी young थे. We were only 6 months into our operation, so our revenue numbers were not so solid then. I think at this stage we are already, we closed last year at 1.5 CR. By now we've already closed to, so ये year end तो हम double revenue करने वाले हैं. So 1.5 का 3 CR तो इस साल हम already close कर रहे हैं. And in हुँ, fact, we are going for our first round of funding, which is family and friends round of funding, where we are going in for 1 to 1.5 CR of funding coming in from our friends and family. So that is that. But yeah, coming back to the show bit of it, yeah, it is important at what age really your startup or the brand is. We were a tad bit too early, and that I think kind of discouraged or thoda sa lack of confidence from the sharks हो गया at that point of time कि यार ये बहुत नए हैं, and we were totally okay, हमको पता था यार ये आने ही वाली है challenge. हुँ, But the second or the more positive side was here, it once you're on Shark Tank and once you're in front of public, it puts you हुँ, across to a very wide stage. So now you have the access to a lot more resources, to a lot more people. Grabbing attention from people becomes much more easier. So now you are part of the Shark Tank world or the community or that startup community. So access to people, resources, network is far better than what we would have otherwise had. So yeah, network is the biggest takeaway that we take from the entire Shark Tank experience. We're connected to over 350 brands on WhatsApp. I know they're all a message away. So yeah. ऑसम। कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी लाइक कि फंडिंग नहीं मिली एंड एनीथिंग लाइक दैट? Definitely, when you go to Shark Tank, your family and friends attach a lot of hope. कि यार, that is seen as a social tick mark or a checkbox. But yeah, that there was a momentary feeling यार ये
oh man, we didn't get the funding, or we didn't take the social tick mark or the box ki yaar इनको funding मिल गई, they're a funded Shark Tank brand. But that was soon overcome by the fantastic response that we got from people. So all over YouTube, if you see the comments, the sales, in fact, with the first 3 hours of the एपिसोड एयरिंग, हमारा अमेज़न का पूरा माल स्टॉक आउट हो गया था. वी हैड टू सेंड एन एंटायर फ्रेश लॉट द वेरी नेक्स्ट डे. ओके। Within the first 13 hours, we were sold out for the entire 3 months worth of our online sales. So people, I think people and customer love, I think, is more than enough here. Wo, once that flows in, then that comes in, and the fantastic messages that you get from them, from your friends and family, relatives, that compensates for everything. तो Yeah. अभी मार्केटिंग पे वर्क करना पड़ता है आपको? मतलब कैसे Yeah, करते हो it's, मार्केट? see, like I told you, yeah, FMCG brand is a constant process, or brand building is a constant process. Now, in fact, it gets even more challenging because your benchmarks are higher. आज जब हम इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ब्रांड जैसे टिगल जैसे ब्रांड्स को देखते हैं, गुडगम जैसे ब्रांड्स को देखते हैं, फॉर दैट मैटर नेशर माइल जैसे ब्रांड्स को देखते हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक. एंड इट्स ऑलवेज लाइक जब भी आप एक आईआईटी में से निकल के आते हो, तो योर बेंचमार्क ऑफ फेलो स्टूडेंट्स इज सो हाई दैट इट नेवर लेट्स यू सेटल. अरे यार इसने ये कर लिया, चलो यार ये मोटिवेशन, हम भी कुछ कर लेते हैं. So हुँ, that I think is very interesting, and that keeps pushing you further and further and further. कभी ऐसा मोमेंट आया है मतलब लाइक फेलियर का कि ऑब्वियस बात है फाउंडर्स जर्नी होती तो आप अनसर्टेन होती है। तो कभी मोमेंट्स आए हैं ऐसे कि डिमोटिवेशन हुआ हो एंड लाइक कि अभी छोड़ देना चाहिए या तो हाउ डू यू कीप एक डेडिकेशन कैसे मेंटेन करते हो करके रखते हो एज See, अ I फाउंडर? think with every failure comes a learning. With every learning comes improvisation and understanding of what the market really wants. So that as a founder, you have to understand that as a, yeah, it's not a rejection to you. It's not a rejection to you as a personality. So never take it too personal. It's not a rejection to your brand or the concept. Maybe, maybe वो particular use case, वो हुँ, पर्टिकुलर टाइमिंग पे यू आर नॉट द बेस्ट फिट. हुँ, और वो आई थिंक वो मूवी में था ना, अपना टाइम आएगा. इट्स मोर लाइक दैट. सो यू कीप हुँ, रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि यार अपना टाइम आएगा. So it's more like that, and whatever. For example, Diwali mein we had a we put up a very fantastic show in terms of our beautiful design gift boxes. We innovated ourselves on the Kashmiri kawa and the whole experience building out of it. एंड वाइल वी टुक इट टू अ मोर ट्रेडिशनल कंपनी, बोले नहीं यार हमको ड्राई फ्रूट ही चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए. आप सिर्फ दो, एक 500 ग्राम्स का काजू, 500 ग्राम्स का बादाम पैक करके दे दो, हमको इतनी हुँ, खुशी है, दैट्स ऑल वी वांट टू गिव. बट एट द सेम टाइम यू फाइंड अदर सेट ऑफ कंज्यूमर्स जो बोलते हैं यार दिस इज अ फैंटास्टिक इनोवेशन और एन एक्सपीरियंस दैट यू आर गिविंग टू आवर कंज्यूमर्स और लाइक आवर एम्प्लॉयज, वी वुड लव इट. एंड खेलते खेलते हमारा एक बहुत बड़ा एक नया रेवेन्यू चंक ऐड हो गया इन टर्म्स ऑफ फेस्टिव गिफ्टिंग. सो यू हैव टू फाइंड योर कंज्यूमर. आई थिंक दैट्स क्रिटिकल. जैसे कि मैंने बोला, हमारा कंज्यूमर डे वन से डेली वेज वर्कर नहीं होने वाला. आज हमारा जो होता है वो एक सर्टन इकोनॉमिक ब्रैकेट, सर्टन अवेयरनेस ब्रैकेट पे हमारा शुरू होगा. बट नंदनलेस वो एज टाइम पासेस वो नीचे भी परकुलेट होगा. हुँ, बिल्कुल। कुछ So yeah, मिस्टेक्स you missed out on extending this कि यार जब हमने देखा कि ड्राई फ्रूट is what is very exciting and important. Exciting तो नहीं बोले, important when it comes to दिवाली and the हुँ, whole experience bit of it. तो हमने ensure किया कि हाँ जब हम कप्स रख रहे हैं उसके बाजू में हम कश्मीरी का जो experience ऐड करें, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ब्रांड्स के साथ पार्टनर करें जो ड्राई फ्रूट कैटेगरी में या हुँ, इंडियन मिठाई कैटेगरी में बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी चीज़ें बनाते हैं. एक हुँ, होलिस्टिक एक्सपीरियंस हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करें. दैट आई थिंक वर्क वेरी वेल विथ आवर consumers, which otherwise this is the small learning, right? You learn, you quickly adapt, and then you put it out there. You don't take too much time thinking about it. फटाफट करते जाओ काम. बिल्कुल। कुछ मिस्टेक शेयर करना चाहोगे? पूछ रहा था मैं कि जो आपने करी हो एंड आप आप सोचते हो कि यू वुड हैव डन डिफरेंटली व्हेन यू वर गेटिंग स्टार्टेड? So to see, put it that way, I think एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर लाइक अ जर्नी वेयर आप किसी और की प्लेबुक कभी यूज़ नहीं कर सकते इसमें. यू हैव टू योर प्रोडक्ट एंड योर सी entrepreneurship or a product for that matter is not just a function of the product alone. It's a function of your capabilities as an individual founder, what you are bringing on the table, but at the same time the circumstances and the team that you are building. सो वाइल हम जब बहुत जल्दी शुरुआत कर रहे थे, एंड माई मदर इज इन टू डिस्ट्रीब्यूशन
of हुँ, retail distribution. So we had one of our close sales associate tell us, why don't you put your product out there in 300 stores? जिस जितनी ज़्यादा visibility होगी उतनी ज़्यादा आपका product बिकेगा. And probably he was right from the time he was coming around. And we tried to हुँ, do it, but we soon realized that it's not like a, like I told you, हम सस्ता चावल या सस्ता गेहूं नहीं बेच रहे. हम हुँ, entirely new product category बना के बेच रहे हैं. That will हुँ, require education. And वो सिर्फ placement से नहीं होगा, वो awareness and placement को balance करके होगा. So हुँ, rather than going retail where the cost of education is very high and the हुँ, visibility or the time spent by a consumer is very low, you go to हुँ, platforms where your visibility education part is well taken care of. Like Meta हुँ, is our biggest revenue drivers because वहाँ हम customer को educate कर पाते हैं. Then we use platforms like Amazon and in fact next month हम Zepto पे भी available होंगे. So those हुँ, two platforms are more of fulfillment platforms for us. हुँ, नो डाउट काफ़ी ब्रांड्स अमेज़न और ज़ेप्टो पे बनी है, पर वो कैटेगरीज़ की बनी है जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे, उनको सस्ता करके बेचा गया है या कुछ और प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करके बेचा गया है। हमारे लिए हुँ, ये कैटेगरी क्रिएशन है, तो आज हम कस्टमर को बाहर एजुकेट करें तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म से उनको फैसिलिटेट करते हैं। हुँ। अवेयर कैसे करते हो? बाय सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं या? सोशल मीडिया आई थिंक डेफिनेटली सोशल मीडिया एड्स हैं, इवेंट्स हैं। हुँ, आज कॉर्पोरेट्स में हम जब प्रोडक्ट प्लेस करते हैं, वहाँ पर काफ़ी एजुकेशन होता है, प्रोडक्ट का एक्सेसिबिलिटी जनरेट होती है। वहाँ से एक हुँ, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन डेवलप होता है, जो इवेंचुअली हमारे बी टू सी में फनल इन होता है। सो हुँ, पीपल व्हेन दे कम टू Amazon or for that matter even Zepto, they come searching for green tea. हुँ, दे डोंट कम इन सर्चिंग फॉर कब्जी इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ, क्योंकि उनको हुँ, पता ही नहीं कब्जी नाम की कोई चीज़ अवेलेबल है। हुँ, राइट? बट जब वो एक बार कंज्यूमर कब्जी पीता है, तो वो ऑटोमैटिकली जब दूसरी बार उसको चाहिए तो वो अमेज़न जो ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है या ज़ेप्टो जो क्विक डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ जाके वो लेता है। हुँ, सो दैट इज़ वेयर इट कम्स इन। So channel mix is very very important, and हुँ, every channel mix is catered to your product, it and हुँ, your circumstances. You can't be यार इसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे कर लूँ, उसने वैसे किया तो मैं भी वैसे करूँ। ऑसम। 5 से 10 साल में कहाँ देखते हो कब्ज़ी को? एनी नेक्स्ट गोल्स एंड प्लान्स? I think I want to. I think the brand also is moving in a direction where we are expanding our portfolio from beyond just being a green tea brand into being a hot beverage brand in the out of home consumption space. So I would really like to own entire hot beverage menus in a lot of places. For example, we don't want to be limited to just coffee to what Rage Coffee and Sleepy Owl is, or chai to what Dorje, or for example any other brand is tea box or something of that sort. We want to be a tea, coffee, hot chocolate, green tea brand in an out of home consumption environment and own a larger share of the hot beverage market. So yeah, you will very well see us कि यार मुझे कब्जी चाहिए, जाके आप बोलोगे तो पूछेगा क्या लोगे आप, चाय, कॉफी, ग्रीन टी, हॉट चॉकलेट क्या लोगे आप? हुँ, सो दैट्स वेयर इट इज़। आज कोई भी अगर आप हिल स्टेशन पे जाओगे, कोई एयरबीएनबी में जाओगे, तो वहाँ एंटायर एरे ऑफ हमारे फ्लेवर्स पड़े होंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट। या So a कुछ person can run an entire hot beverage kiosk with just कब्जी फ्लेवर्स या कब्जी प्रोडक्ट्स, उसको आज किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। या अब आपको काफ़ी साल हो गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो अभी अभी आप हाउ यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड लाइक, या फिर जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, तब कहाँ से सीखते थे? एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से सीखी? क्या I think इंस्पिरेशन? Instagram is my biggest teacher. I am very, very active on Instagram when it comes to looking up things. I don't post that often, but I keep looking at other brands, other ads. I learn a lot from what other people are doing there. And at the same time, we attend a lot of trade fairs. So that gives us a lot of ideation into what other international markets are behaving and doing, which is where we're able to get a lot of different taste profiles into India. So, for example, coffees, we want to get a lot of mature taste profiles into India. So that is what we will be trying to do there. हॉट चॉकलेट एंड अदर एरियाज, तो वहाँ से हम काफ़ी सीखते हैं, ट्रेड फेयर से, कस्टमर से बहुत सीखते हैं, इंस्टाग्राम पे अदर ब्रांड से काफ़ी हम सीखते हैं। कोई फीडबैक शेयर करना चाहोगे? लाइक कस्टमर का कोई फीडबैक आया हो जो आप व्हिच आई यू आर थिंक द प्राउड? बिगेस्ट विनर ऑफ द फीडबैक इज इनफैक्ट कल ही इनफैक्ट आए थे कस्टमर के इंस्टाग्राम पे मैसेज दैट आई एम इनफैक्ट एब्सोल्युटली लव विद योर कोकम फ्लेवर, आई हैव ऑलरेडी बॉट 3 एंड आई एम ऑन रूट फॉर बाइंग द 4th जार फॉर माय परचेस। या लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट इन, यार मैं तो पहले कभी ग्रीन टी पीता ही नहीं था, बट आपके हुँ, होने से, आपके प्रोडक्ट के होने से आज हमने ये पीना शुरू किया, एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट यार, वी आर ऑल बिल्डिंग टुवर्ड्स अ फूड फार्मर लेड हेल्दियर
India, and that is what we are all trying to build. So this is our contribution into building something like that. Do you watch any movies or books? Any suggestions? Honestly, I'm not too much of a reading person. I'm more of a visual person. So I go to a lot of Instagram or for that matter YouTube content मैं काफ़ी consume करता हूँ. So my favorites would be Think School, Baba Shop. These are always my go-to. I don't miss episodes around that. Nikhil Kamath. So I keep listening to a lot of people's advices, their experiences. That keeps making me sharpen my outlook towards the market. So yeah, these are a couple of Rogue Regan hai. So yeah, all these people are fantastic people. They bring in a lot of valuable advice on board. हाँ, व्हेन यू ग्रेजुएटेड तब आपने कोई जॉब जॉब भी की थी या स्टार्टिंग से ही? I did work in EVs for some time. तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियर तरीके ज्वाइन तो हुआ था, बट एट द सेम टाइम वी वर लुकिंग एट refurbishing the gasoline vehicles with electric. So remove the engine for that matter out of it, remove the gearbox, and install like a newer gearbox system and an electric motor and a battery pack. So वो कॉम्बिनेशन में हमने काफ़ी काम किया था वहाँ पे. But that company is doing well, but they had different plans. So I felt that my journey is better off if I go study and take this learning journey forward. हाउ डिड यू ट्रांजिशन की एक जॉब से इन इन द स्टार्टअप लाइक आप? So, see, it's important to know, it's important to be true to yourself. Uh, it doesn't matter what other people are really doing. I keep telling everybody that it doesn't matter what other people's journey are. There is this one dialogue, "Apna time aayega," is हम्म, always that's my slogan of life. And हम्म, when you have to be when you're true to yourself, you automatically know यार आपको किस में मजा आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है. What is it that where do you find your fit or your personality fit into? Like it's been about 45 minutes that we're talking, but I don't मैंने clock की तरफ एक भी बार देखा नहीं है because I am enjoying interacting with you. I mean हम्म, that's my general aspect. That's my kick that I हम्म, get while talking to people हम्म, like yourself, sharing information. हम्म, सो वेराज़ अगर आप मुझे एक लैपटॉप के सामने बिठा देंगे, मुझे बोलेंगे कि यार आपको एक रूम में बंद होके पूरा दिन कोड लिखना है, ये यार मुझसे नहीं हो पाएगा. दैट्स नॉट जनरली व्हाट आई एम मेंट टू डू. आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू टॉक टू पीपल, सी द वाइडर वर्ल्ड एंड होराइजन्स. सो या, इफ यू नो जब भी आप इफ दैट्स वन पर्सन जो हर बार आप एक ग्रुप में या सर्कल में जाते हैं, वो एक इंसान ज़रूर होता है जो कुछ अलग ही ऑर्डर करता है. हम्म, और वो बोलता है कि नहीं यार, और सब लोग बोलते हैं अरे क्या ऑर्डर कर रहा है, मज़ाक उड़ाते हैं उसका. हम्म, वो हर ग्रुप में वो मैं हूँ, जहाँ पे मुझे हर बार कुछ अलग ट्राई करना होता है. हर बार मुझे कुछ अलग टेस्ट प्रोफाइल समझना होता है. हर बार एक ही जगह पे जाके पाव भाजी खा के क्या करना, जब आप तवा पुलाव भी खा सकते हो, आप मसाला पाव भी खा सकते हो, मसाला वड़ा पाव भी खा सकते हो. जस्ट कीप लर्निंग, पिक अप ऑन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ. एनी टिप्स ऑन टीम मैनेजमेंट एंड कैन वी नो कि आपकी टीम कैसे ऑपरेट करती है इनसाइड? So we have a very lean team when it comes to the white collar aspect of it. No doubt, the blue collar workforce is about 30 to 35 people right now who are into pure play production. But our white collar workforce या जो हम बोलते हैं management workforce जो है वो काफ़ी focused और limited है, where we have outsourced quite a few operations for us which we don't think are best suited for us. For example, our growth marketing is outsourced, but we constantly work with them on a daily basis to learn and capture. A design house, हम एक design house के साथ individually work करते हैं. So we typically are a bunch of generalist people who like to get into one particular thing and learn and explore that and then move on to the other. And we वर्क विद एक्सपर्ट्स ऑन द आउटर फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो बाहर एक्सपर्ट्स की टीम है, हम अंदर जनरलिस्ट हैं जो एक एक एस्पेक्ट्स को पकड़ पकड़ के मैनेज कर रहे हैं. समझ गया. एंड ऑब्वियसली एज अ फाउंडर यही रोल होता होगा ना कि आप एक्सपर्ट से पक्को पकड़ रहे हो कि डिज़ाइन या ब्रांडिंग ये बहुत अच्छी करेगा, सिर्फ आप अपनी मेंटेलिटी दे रहे हो, परफेक्ट वो करके दे रहा है एंड यू आर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज एज अ स्टार्टअप यू ऑट टू स्टे लीन यार. यू आर नॉट, हम वो टाइम पे नहीं है हमारे पिताजी के टाइम पे जहाँ पे हमें एक ही काम करना था 25 साल तक, और हमारे पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड था टू फिगर एवरीथिंग आउट, परफेक्ट आवरसेल्व्स एंड डू इट. नहीं यार, इफ देर आर एक्सपर्ट्स आउट देयर, गो टेक देयर हेल्प. एंड इफ
because they have put in their 25 years there. Use that 25 years to save your 25 years and develop something better. So I think time is critical. Time now is a function of money, because money is rather at easier disposal than what it was at 20-25 years back. Time is at a difficult disposal, at a costlier disposal than what it was 25 years back. So you need to be very rational in terms of using your time versus money. या एंड बल्कि पर आज तो आप आउटसोर्स कर पा रहे हो, बट व्हेन यू स्टार्टेड इन योर, कैन यू शेयर स्टोरीज ऑफ योर बैक डेज, जब बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे थे? ऑब्वियस बात है उस टाइम उतना पैसा भी नहीं होगा. See, no, I think for us, I think we've always identified what are the things that we are very close to ourselves, which is sales aspect is very close to ourselves. Production is something which is very close, and we want to own, because sales is a function of relationships. Production is a function of your own recipes, your own mastery, product development. So we've always kept these two very close to our hearts and in house. At the same time, we've used these capacities to function and and generate funds, which in turn can help us do other things better. For example, our export and pharma gifting, which are extremely sales and production heavy, वो हमने हमारे पास रखे हैं ताकि वहाँ से जो हमारे पास एक फंड जनरेट हो, उससे हम D2C में प्लाव कर सकें, जिससे हमारी ब्रांडिंग को हम एंगेज कर सके, जैसे ग्रोथ मार्केटिंग को हम दे सके, जैसे मार्केटिंग को हम कर सकें, ऐसे हम बाहर एलोकेट कर सके फंड्स. So as a company, you need to know what is two to three things that you will do best, what are two to three things that others will do best. बट कभी ऐसा हुआ है कि जिनसे आप करवा रहे हो, ऑब्वियस बात है कि क्वालिटी मेंटेन करना, बी इट फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड बी इट फ्रॉम आउटसाइड थर्ड पार्टी सर्विस, ये थोड़ा सा डू यू थिंक कि डिफिकल्ट हो जाता है एक कंसिस्टेंट It क्वालिटी मेंटेन depends on करना? your relationships, yeah. To be honest, it depends heavily on your relationships with people, understanding rapport, like the design agency that we are working with. At day one से लेके आज तक उन्हीं के साथ काम करें. We very happy working with them, want to continue with them. हाँ, on the other hand, there are agencies like growth marketing जहाँ पे growth fatigue आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे agency fatigue आना शुरू हो जाता है. But that is again something you learn, you capture the insights. But जो मैनुअल लेबर का काम है वो आप आउटसोर्स करते जाते हैं. इनसाइट्स आप कैप्चर करते हैं, मैनुअल लेबर आप किसी को देते हैं. वीडियो एडिटिंग जैसा काम है, आप बाहर दे दिए, आप उनको बोल दिया ये रेफरेंस वीडियो ये करके दे दो मुझे, पर वो रेफरेंस वीडियो की क्लैरिटी आपको होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ के केस में ये मेरे ऑडियंस सेट्स हैं, आप सिर्फ इनके मेटा एड्स को बनाओ, आप इनको एडिट करके बाहर प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग करके मुझे इसका इंसाइट बता दो. बिल्कुल. सो दैट्स आई थिंक वेयर वी कमिंग फ्रॉम. एंड आपने जैसे शार्क टैंक में बोला कि इन द नेक्स्ट 3 इयर्स आपने 50 करोड़ का प्रोजेक्शन बोला. यस 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 उसके यस. पीछे थॉट प्रोसेस बता सकते हो कि कैसे एस्टिमेट करते हैं, या सो कि आई थिंक कैसे? सी लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप ग्रीन टी की मार्केट देखिए तो एक्स है, टी एन कॉफ़ी की उसकी 3, टी की उसकी एटलीस्ट 8x है, कॉफ़ी की 2x है. व्हेन वी आर कमिंग अप विद अ बेवरेज, हमें विजन था कि आज हम ग्रीन टी से शुरुआत करने वाले हैं, बट हम आज टी कॉफ़ी एंड अदर जोन्स में भी जाने वाले हैं. ऑल ऑफ दिस आर हेल्दियर वर्जन्स, नॉट द रेगुलर बाहर जो वर्जन्स मिलते हैं वो नहीं, healthier version. So that makes us occupy an entire hot beverage arena. The hot beverage market is huge. That allows us to get an access into a wider audience. For example, आज आपके घर में I'm expecting आपके पेरेंट्स हैं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, आपने चलो आपके लिए आज कुछ ऑर्डर करना तो कॉफ़ी कर ली, मम्मी के लिए शायद ग्रीन टी कर ली, पापा के लिए शायद चाय कर लिया, बहन के लिए शायद हॉट चॉकलेट कर लिया. मेरा पूरा फैमिली का जो हॉट बेवरेज नीड्स है वो मेरे पास आ गया. So that is where part one. Part two, I think out of home consumption is a very big market जो startups देख ही नहीं रहे या कोशिश कर ही नहीं रहे उसके प्रति. हमारा डे वन से था कि हम सर्वेबिलिटी पे बहुत फोकस करेंगे और इन मार्केट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. So yeah, we are developing our relationships and developing further in that direction. So that in itself helps us acquire a 75% जिसके पीछे कोई जा ही नहीं रहा आज. तो शार्क टैंक के बाद जो उन्होंने इनसाइट्स दिए, डिड यू चेंज्ड एनी योर बिजनेस की स्ट्रेटजी में कुछ चेंज किया आपने, या वैसे ही चल रहा है? I think we definitely took up Aman's advice too seriously. We started looking at it
कि यार वी वांट टू बी, ही हेल्प्ड अस मोटिवेट एंड बिकम लाइक अ बिगर विजन, बिगर ब्रांड, कि बड़ा देखो, बड़ा सोचो, या while हुँ, also being realistic in what you're doing. But yeah, it helps us open up our mind कि why constrict ourselves to just one part of beverage, जहाँ पे पूरी दुनिया आपके कदमों में हो सकती है, आप पूरी दुनिया के beverages बना सकते हैं. So we worked heavily on that. And other than that, I think Anupam sir has always been of he's believed in our product a lot. In fact, वो एक देने भी वाले थे ऑफर तभी, and we've always been in touch with him even after Shark Tank. So yeah, sooner or later we are looking at an investment coming in from his side positively. ओह, ऑसम, कूल देन एनी स्टोरीज़ व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर कि जैसे रिसर्च कैसे करते हो आप जो फ्यूचर में जितने भी आपके फ्लेवर्स नए आने वाले हैं या फिर जो पास्ट में आपने फ्लेवर्स क्रिएट किए, उसके बारे में कैसे रिसर्च कर रहे हो कि ये फ्लेवर अच्छा हो सकता है और कैसे बनाते हो मतलब? I think our customers, yeah. So what we try to do is we definitely there is an innate thinking. अभी इसमें ऐसा होता है कि जैसे जामुन फ्लेवर जब हमें डेवलप करना था, बाहर ऐसा हुँ, कोई फ्लेवर है ही नहीं मार्केट में जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकें इन द ग्रीन टी और द हॉट बेवरेज कैटेगरी, जो भी है हुँ, कोल्ड बेवरेजेस से थे. सो इंटरनल एक इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली होता ही है, बट एट द हुँ, सेम टाइम वी लुक एट अ लॉट ऑफ अदर इंडियन बेवरेजेस, और उसको टेस्ट प्रोफाइल को रेफरेंस पकड़ते हुए हम कोशिश करते हैं कि हॉट को भी हम वो लेवल तक लेके जाए. जैसे आज हमारा जामुन जो है इज लाइक अ काला खट्टा फ्लेवर इन द हॉट वर्जन, सो पीपल लव हुँ, इट फॉर इट इज. फिर हम कस्टमर्स जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको टेस्टिंग पे डालते हैं, कभी हम नए हुँ, कस्टमर्स को टेस्टिंग पे डालते हैं, एंड वी आर वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग आवर कस्टमर्स एंड गेटिंग फीडबैक. So that I think has kept us on our toes all the time. We participate in a lot of fleas and markets जहाँ पे हम directly customers के साथ interact करते हैं, direct sampling testing करवाते हैं. So उससे we keep learning ourselves a lot. हुँ, So you have to put yourself out there in front of people, in front of your customers. आप पर्दे के पीछे shy नहीं हो सकते, लैपटॉप के पीछे नहीं आ सकते. आपको बाहर जाना है. You have to make yourself more vulnerable. It's not easy calling customers, but you have to do it. या So I कूल देन think एनी Mayank, more or less, I will have to take your leave on this one. या Uh, द फाइनल क्वेश्चन वुड बी कि एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू अ स्टूडेंट, college student or a corporate fresher 1-2 year experienced who wants to be an entrepreneur or just wants to go out start. there, do it. Go out there, do it. As simple as that. There is no better teacher than work in itself. There नहीं, is don't hold yourself. Yeah, please go ahead. गेटिंग आइडियाज और उस आइडिया पे वर्क करके उसको इतना प्रॉफिटेबल बनाना कि दैट यू कैन रिप्लेस योर जॉब, वो एक नहीं, आई चैलेंज नहीं थिंक होता? इट्स, अगर आप ये देखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक अ मैराथन. हम्म, It's not like a sprint. You, if you're looking at making yourself profitable from day one, वो तो नहीं होने वाला. You have to play the long game of 8 to 10 years, where you see it's a delayed gratification process. So I'm not sure हम्म, financial independence या freedom कितना जल्दी आता है इस process में. But I think I'm हम्म, sure on one thing कि if you make it, you will know what are the challenges in making it. So idea is definitely an inward process where you have to be vigilant, alert in capturing an insight. But what is really important is how you take any idea from that moment into reality. And even with a little investment, आज आपको हर चीज accessible है, करना आसान है. So try, don't make the most perfect thing. Make, अगर आप 10 तक पहुंचना, आप एक बनाओ, दो बनाओ, और उसको कस्टमर के साथ डालते रहो बार बार. हम्म. Thank you so much Thank you, for Mike. coming. Thank you Thank so you for much your for time. coming. Thank you for this In depth. opportunity. Hope to see you soon. Hope to meet you soon again. And Thank श्योर, you. Thank you so थैंक्स अ much. लॉट फॉर कमिंग. तो दोस्तों, ये थी हमारी बात कपजी के को-फाउंडर आकाश सोटा के साथ. मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी जर्नी और उनका इनोवेटिव प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा. कपजी ने सिर्फ चाय बनाने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि ये दिखाया कि कैसे एक सिंपल आइडिया को हार्डवर्क और पैशन के साथ एक बड़े बिजनेस में बदला जा सकता है. पॉडकास्ट सुनने के लिए शुक्रिया. आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे कैंपस कोड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. मैं हूँ आपका होस्ट मयंक अरोड़ा और मिलते हैं अगली बार एक नए गेस्ट और नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ.